Students, is the audio and video fine with you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Students, last lecture, what exactly we completed? Fill the all form of vectors. Sir, the triangle law of vector addition. Okay. Fine. I said about definitions also related to vectors, Yes, sir. equal vectors, unequal vectors, Yes, sir. opposite vectors. I told you about null vector. Sir, you have only talk about four vector only. Okay, did I speak about null vector? No. Okay. Now students, we'll go further with the definitions. Okay, I must have told you about triangle law also, vector addition we consider. Okay, did I say opposite of a given vector, a negative vector? No, sir. You only Okay. talk about equal, unequal, parallel, and anti-parallel. So anti-parallel will be in the direction opposite. In the direction opposite. So that's what I consider. अगर मैंने vector B दिया है तो उसका opposite तो minus B होगा. यानी एक ट्रेन जा रही है बोरीवली की तरफ. If in case if I'm speaking about the western suburb, बोरीवली की तरफ और दूसरी ट्रेन जा रही है चर्च गेट की तरफ. तो दोनों opposite direction में होंगे. You getting it? अगर इसका भी स्पीड मैंने लिया है 70 किलोमीटर पर आवर और इसका भी मैंने स्पीड लिया 70 किलोमीटर पर आवर, आर दे इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन? Opposite. आर दे Opposite. इक्वल इन मैग्नीट्यूड? इनका भी 70 किलोमीटर है, ये भी 70 किलोमीटर पर आवर है. एग्री? Yes, बट दे sir. आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो आर दे इक्वल वेक्टर्स? They are equal in magnitude but opposite in Direction. Anti-parallel. So anti-parallel means one vector is negative of the other. Agreed? And they form 180-degree angle. Yes, absolutely correct. Now I'm getting certain chats from the students. Panchul is saying it. Panchul Soni is saying it. Okay, Mariam, fine. And there, you might come across these sessions are recorded, my dear. These sessions are now students. Panchul, okay, Yes, sir. Mariam, and there, these records and Shrivardhan, these records have been recorded in that. These lectures have been recorded in that case. So have you all come across the recorded session, students? Those who Till have not attended. sended. Pardon? Till not sended on the group. अच्छा, it's not sending the, but you can go onto the YouTube, my dear. YouTube अगर तुम link जाओगे ना IIT Hub के अंदर, Yes, sir, IIT there Hub is का channel. जो YouTube, हाँ YouTube चैनल है, तो वहाँ पे अगर जाओगे तो वहाँ पे सारे lectures uploaded है. समझ में आ रहा है students? तो तुम्हारा बैच का तुम्हें देखना है कि फाउंडेशन बिल्डर न्यू जैसे तुम्हारा बैच है 21-23 बैच 2021-2023 बैच, तो वहाँ पे तुम देख सकते हो स्टूडेंट्स. Okay. Shivardhan, is it clear? Dhairya, is it clear? Mariam, is it clear? Panchul, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. वापस मैं बोल रहा हूँ IIT हब की जो है करके YouTube चैनल, तो वहाँ पे तुम कर सकते. लेकिन I'll be speaking about जो तुम लोगों ने मिस किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे in the lectures. Don't worry about that, huh? Please. Mariam, Panchul, Dhairya, Shivardhan. Is that clear? Don't worry about that. Okay, tension mat lo. Okay. Sir? Yes, my dear. Who's this, Purvi? Sir, I have a doubt. Bolo. Sir, you said that unequal vectors are having opposite direction and magnitude, right? My dear, unequal vectors not necessarily they have to be in opposite direction. Opposite vectors are in opposite direction और anti-parallel vectors are opposite direction. Unequal vectors का मतलब कि शायद उनका magnitude different है, direction भी different हो सकता है. यानी वो डायरेक्शन शायद दोनों के बीच में 60 डिग्रीज भी हो सकता है, 30 डिग्रीज भी हो सकता है, 90 डिग्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. That's what unequal का मतलब अलग है, my dear.
ऑपोजिट के लिए मैंने बोला था या एंटी पैरेलल के लिए मैंने बोला था, मैंने अनइक्वल के लिए नहीं Okay. बोला। दैट्स व्हाट यू शुड हियर वेरी क्लियरली। और क्या है, और उसमें और कुछ पूछना है पूर्वी? Yeah, actually, the question was going forward only, but you हाँ kind of बोलो। explained me. या अच्छा हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया उसी में। Yes, sir. ओके फाइन फाइन। क्योंकि Okay. मैंने क्या बोला, अभी भी मैंने एग्जांपल दिया तो मैंने क्या बोला, मतलब मैंने इसको पूछा था आधे इक्वल और अनइक्वल। अनइक्वल इसलिए हुआ क्योंकि उनका डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये प्रिसाइज आंसर अनइक्वल की जगह पे ऑपोजिट मोर प्रिसाइज होगा, यानी बहुत बहुत करेक्ट आंसर। अगर सपोज मैंने अनइक्वल ऑप्शन दिया है या ऑपोजिट दिया तो ऑपोजिट मोर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्योंकि दे Yes, आर sir. बोथ इन डायरेक्शन ऑपोजिट विद आंसर। ओके, Okay. Thank you. most welcome. Okay, now please finish it, students. Now we speak about Sir? the next one. Yes, Sir, just one more doubt. Shri, can you be a little bit louder? Bolo. Hello, can you hear me now? Yeah, I can hear you. Bolo. Sir, I was asking that negative, unequal, and anti-parallel vectors are all the same, right? They're just different. When I say negative vector, that means of a given vector, then it is equal in magnitude and opposite in direction, and the answer of this will be always 0. That is negative vector. Second, what you said it? Unequal and anti-parallel. Unequal vectors, not necessarily that they have to be in opposite direction. Not necessarily. So Okay, I can give you two vectors at a certain angle also. Right. Okay, but and unequal magnitudes. Agreed? Different directions and different magnitudes. Agreed? Yes, sir. और तीसरा क्या पूछा था? Anti-parallel. एंटी पैरेलल का मतलब सिर्फ उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, बस। So the same as negative. जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है तो वन इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो वो जीरो वेक्टर लेके आएगा। यानी उसका मतलब तुम let us go for this, what she's trying to go for it. Okay, I'll try to put forward this itself only. Okay, let me speak about this. Unequal vector. Okay, two vectors are given to you. Suppose if I give you vector A and another vector B. Okay, one is longer in arrow, other one is shorter in arrow. Okay, and the angle formed between them is greater than 90. These are unequal vectors. One is vector A and one is vector B. Angle theta is acute. This is also unequal vectors. Agreed? Students getting it? Yes, sir. Any anti-parallel vector which is 0 will be negative. Any anti-parallel vector which is 0 is called as a null vector, which gives you a resultant 0 is a null vector. Right. Oh, yes. Are you getting it? Yeah. Okay. Now, if in case if I happen to go for this is unequal vectors. Now, if I happen to go for negative, suppose if I give you vector is this, and if I say negative of vector A, नेगेटिव सिर्फ क्या दिखाता है? डायरेक्शन। यानी ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आई गेटिंग इट? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो दोनों A और माइनस A दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड इज सेम। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? Opposite. What about direction? Direction is opposite. Direction is opposite. Okay, that's what we call this as negative. Negative vector because. यहाँ पे अगर मैं इसका resultant निकालूं students तो क्या आंसर होगा? If I try to find out the resultant of this, तो the answer है ना students? That means I want to find out resultant. That means I want to shift one vector with respect to other. तो मैंने
इस वेक्टर को यहाँ पे ले लिया, ये वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ मुझे, दूसरे वेक्टर मैंने शिफ्ट कर दिया, यानी ये टेल आई हैव मर्ज्ड विद दिस पार्ट. Now can you tell me? 180. Yes. What is the angle formed between them is 180. But what is the answer? Is the resultant? This is pi circular. What is the answer resultant? Resultant will be vector A plus of minus vector A. Because दोनों को add करना जरूरी है, तो what is my answer will be? Sir, vector A minus vector A. What is my answer? 0. Zero vector. And what is the zero vector is called? Yeah, O. This is called as O, not zero. This is called as a null vector. What is this we call? Null vector. Null vector. इसका magnitude क्या होगा? 0. Magnitude क्या होगा? Students समझ में आया? Yes. अगर एक वेक्टर मैंने दूसरे को ऑपोजिट दे दिया, एक वेक्टर को दूसरा उसका ऑपोजिट कर दिया, लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन ऑपोजिट रखा, तो उनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमेशा 0 बनेगा, आंसर 0 मिलेगा. लेकिन ये ओ बार है, वेक्टर ओ वी कंसीडर व्हिच इज कॉल्ड एज नल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 0 है. अभी मुझे स्टूडेंट्स ये बताओ, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. तुमने शुरू किया यहाँ से पॉइंट ओ से, तुम गए 4 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर तुम 4 मीटर वापस वेस्ट की तरफ आए, तो तुम कहाँ पे पोजीशन? यू केम बैक टू द सेम पोजीशन. So what is your resultant displacement will be 0. Now if I ask you what is the direction of null vector, तो क्या बता सकता है? Direction of null vector क्या होगा? Sir, it's arbitrary. Who said that? Sami Upendra. Upendra. What exactly you mean by the term arbitrary? Sir, you can take it to any direction. For example, 0 meters north, 0 meters south, 0 meter east, west, anything. That means ये है डायरेक्शन आर्बिट्ररी. उसका मतलब क्या हुआ मालूम है? अभी यहाँ पे आने के बाद में तुम कहीं पे भी जा सकते हो. ध्यान से सुनना प्लीज, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. व्हाट एम आई ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड? अगर मैं 4 मीटर इस तरफ गया और फिर वापस में 4 मीटर इस तरफ आया, तो अभी मैं यहाँ पे आ गया, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. अभी तुम मुझे पूछोगे भाई तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या हुआ? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो मैंने बोला 0. डायरेक्शन, तो यहाँ से मैं कहीं भी जा सकता हूँ. मैं I can go anywhere I can consider. So the direction will be arbitrary. That means if I speak about for null vector, magnitude is always 0, direction is arbitrary. क्या ये clear हुआ? यानी somebody had raised it for unequal vectors. I've said it once again. Negative vector, I've said it once again. Okay. I told about this is called as null vector or zero vector also I told you very clearly. Okay. If I say somebody asked for anti-parallel also, anti-parallel vectors का मतलब क्या हुआ? दो vectors which are in the opposite direction. अगर मैंने कोई vector A यहाँ पे दिया है और दूसरा मैंने vector B दिया है, vector A और vector B, अभी देखो स्टूडेंट्स, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? Is the length of the arrow same? No. Students, those students who are joined in new, बहुत शांति से सुनना. Don't worry about that. Okay, you'll understand very clearly. And I'm using the term which I've learned in 10th standard also. मैंने पूछा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उसका मतलब क्या? लेंथ. अभी देखो इसका लेंथ छोटा, इसका लेंथ बड़ा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है. यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A is not equal to magnitude of B. But are they in same direction or opposite direction? Opposite. That means vector A is opposite of vector B. तो इसको हम क्या बोलेंगे? They are anti-parallel vectors. What is the angle formed between the two vectors? 180. So 0 degree because they are not parallel. 0. I mean, they are not connected to each other. Opposite direction. 180. 180. 180. Angle formed will be 180 degree. क्या ये क्लियर हुआ? ये वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनके बीच में मुझे एंगल चाहिए. तो एंगल मैंने कैसे बोला था? हाउ टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? ईदर इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेल्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू हेड्स. ध्यान से सुनना,
अगर दो टेल्स को मैं मिला दूं, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दो टेल्स को मिला दूं तो मुझे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, एंगल 180 आ रहा है, देखो यहाँ पे। अगर मैं दो हेड्स को ऐसे ले लूं तो एंगल 180 आ रहा है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अभिमान, is this clear with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, All sir. of you, please, all the students who are right now within the lectures. Yes, sir. Okay. Fine. Now, students, I'll be going with respect to the next vector. I'll speak about collinear. Students, did I say about collinear vectors? No, sir. No, sir. Okay. What are collinear points? Have you learned about collinear points? The points which lie on one straight line. Yes. So points which lie on a given line are called to be collinear line. The collinear points. If a line can be extended, all those points also can be extended. We consider on that particular same line. वो collinear points होगा. That is points lying on a given line. What are collinear vectors? Vectors lying on a given line. Yani all those vectors which are lying in the same direction or along the same line are called to be collinear. That means along the same line we consider. Means if I happen to go for collinear vectors, that means they should be exactly lying along the same straight line we consider. That means if I say one train is moving due east, okay, train 1 due east, and another train is also moving in the same direction, train 2 due east, on same track, and the track is straight. What are those are called as collinear vectors. Now, if you carefully look into it, train 1 का मैंने magnitude ज़्यादा रखा है, यानी उसका speed ज़्यादा है. ट्रेन 2 का मैंने एरो छोटा रखा है, उसका मतलब उसका स्पीड कम है, तो ये इसको कभी टकराएगा भी नहीं, और दोनों एक ट्रैक के ऊपर, both of them will try to go on the same track along the same path throughout. So this is how we consider our collinear vectors which are lying along the same straight line we consider. This is a track I'll consider, and in which they are going to move. These are collinear vectors. Is this clear with all of you all? Yes, sir. Yes. Okay. All of you all the students who are right Yes, sir. now, there are 22 Yes, students sir. inside the group. Yes, sir. 22 students. जो नए students Yes, आए sir. हैं, please थोड़ा शांति रखो, आराम से सुनना. I getting it? मैं जो ट्रेन के बारे में बता रहा हूँ तो वो भी समझना कि ये ट्रेन बताए हुए उन्होंने जो एरो दिखाई दे रहा है वो ट्रेन है. This is how you have to understand. लेकिन ट्रेन 1 का एरो सर ने ज्यादा लंबा बता दिया, उसका लेंथ कम कर दिया है, यानी एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं. इसका स्पीड शायद 100 किलोमीटर पर आवर होगा, दूसरे का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगा, तो ये इसको टकराएगा ही नहीं, लेकिन दोनों एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं, ट्रैक स्ट्रेट है, तो these are called as collinear vectors. Now we go for coplanar vectors. Friends, can you tell me what are coplanar vectors? Vector originating from same point. Vectors originating from? 1 point. No, my dear, those are concurrent vectors. And a coplanar, what are coplanar points? Which lie on The same plane. Same plane. the vectors which lie on the plane. नहीं, forget about this. ये vectors के बारे में भूल जाओ. अगर मैंने पूछा what are coplanar points? Collinear points which lie on a given Points line. lying Coplanar points which lie in the same plane, है ना? अकॉल कोप्लानर ये कहाँ का डेफिनेशन है तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, शायद ज्योमेट्री में पढ़ा होगा. पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन स्टूडेंट्स कैन नॉट बी डिफाइंड. यू कैन जस्ट सेट एन एग्जांपल. प्लेन का एग्जांपल, यस, अ व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन. तुम्हारे घर के अंदर जब भी तुम स्टडी टेबल पे बैठे हो तो वो भी एक प्लेन है, एंड द प्लेन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन ऑल द साइड्स वी कंसीडर. तो मैंने क्या बोला? कोप्लानर वेक्टर्स, वेक्टर्स व्हिच lie in a given plane. Vectors lie in a given plane are called coplanar vectors. अभी ध्यान से सुनना. अभी सपोज स्टूडेंट्स को प्लेन डिजाइन करना है, तो प्लेन का मतलब क्या? प्लेन का मतलब 2 dimensional. Please everybody see carefully. Suppose if I have to go for the axis, मुझे बताओ
ये मेरा x एक्सिस है, मैंने इसको y एक्सिस लिया है, तो ये कौन सा एक्सिस होगा? z. Agreed? Yes, sir. Students, did I explain you about concept of unit vector? No. नहीं ना? Okay, fine. So this is x axis, y axis and z axis, students. ये सबको पता है कि x, y, z axis 3 axis होते हैं. सब लोग ने 10th में पढ़ा हुआ x axis, y axis and z axis. उनका जो point of intersection है उसको हम origin बोलेंगे, जिसके coordinates होते हैं 0, 0, 0. क्या ये क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. अभी Yes, सपोज sir. तुम्हें डिसाइड करना है, अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, तुम्हें डिसाइड करना है कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस कैसा होगा. कभी भी कोई भी टीचर ने तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दिया है जहां पे, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी आल्सो सो दैट ऑल ऑफ यू शुड गेट इट वेरी क्लियरली. अगर कोई भी टीचर ने तुम्हें पूछा है स्टूडेंट्स कैन यू फाइंड आउट द एक्सिस इन दैट केस फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, तो तुरंत तुम्हारा लेफ्ट हैंड उठना जरूरी है. See, I'm putting my left hand the way I'm in your sitting position. So if I put in this manner, this is what my left hand. Now when you carefully look at my left hand, ये देखो ये diagram से match हो रहा है. This finger, the second finger speaks about positive x-axis. Please students, ये होगा हमेशा positive x-axis. ये दिखाएगा positive y-axis. तो z-axis किस तरफ होगा? Out of the white board. मेरे यहाँ पे black board है. अगर कोई टीचर तुम्हें स्कूल में से कह दे तो green board या black board होगा. Somebody who is teaching on a screen, तो वो होगा perpendicular to the screen. So students, हमेशा this will be positive x-axis, positive y-axis and positive z. Now if somebody asks me, sir, negative z-axis कहाँ पे होगा? जो whiteboard के अंदर, वो board के अंदर. Yes, जो दीवार के उस तरफ चला जाता. Negative y-axis vertically downwards, negative x-axis horizontally. Agreed? तो कभी and this you can change. अभी suppose मैंने ये x लिया है, listen carefully, मैंने ये x लिया है, ये y लिया है, ये z लिया है. मेरे हिसाब से मैंने इसको x, y, z लिया. तुम तुम्हारे हिसाब से भी लिख सकते हो, तुम इसको x ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स. You can take this as x, you can take this as y, you can take this as z. Yeah, x, y and z. You can change this, but all should be mutually perpendicular to each other. ये ध्यान में रखना. क्या ये क्लियर हुआ? Sir, Yes, sir. if we do that same activity with our right hand, then the middle finger of our No, right hand then would it's show wrong, the then it's x, wrong, negative then x, no? then it's wrong. That's why we never use right hand. We consider, we use left hand to find out the coordinates. We consider, okay, the axis we consider always. Is this clear? Yes, sir. Okay, so x-axis, y-axis, and z-axis. These are 3 axes we consider. Now let us decide the plane. A plane is always a 2-dimensional structure. ये जो लिखा है ना, co-planar, ये word plane, ये plane के बारे में बता रहा है. यानी ये 2-dimensional. अब यहाँ पे plane का मतलब क्या होगा? It can be an xy plane. तो मैं इसको ड्रॉ कर लूं. ये मेरा plane होगा xy plane. Agreed? अगर मैं ये y और z ले लूं, ये होगा मेरा yz plane. X or z, if I show it here, this is xz plane. This can I say it's a kind of a box. एक तुम्हें box दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 3 planes, 2 vertical and 1 horizontal. Is this clear with everyone? Yes. Yes, sir. This is xy plane, this is yz plane, this is xz plane. Now if I say what are coplanar vectors? Vectors lying in a given plane. Yani suppose if I show, suppose if I show one vector A over here, another vector B in this direction. I mean, look at these 2 vectors. Are they equal vectors? No, they are unequal vectors. अभी देखो unequal का यहाँ पे correct आया. Unequal का मतलब क्या? Sir, direction random है. Direction random है. Yes. दोनों का magnitude भी unequal, not same है. लेकिन वो एक ही plane में है. कौन से plane में? Xz plane में. तो इनको मैं क्या बोलूँगा? Co-planar vectors. Are you getting my dear students? Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now suppose if I happen to show another vector. Suppose if I give you one more vector C in this direction. Agreed? Is this vector C, A and B, are they coplanar? No. C is in a given plane YZ. A and B are in a given plane XZ.
So C, A, B are not coplanar, but A and B are coplanar. C is not a coplanar vector. हाँ, लेकिन अगर C के साथ में मैंने दूसरा एक वेक्टर दिया होता है D, तो आधे coplanar. Why not? So Yes. what is the direction opposite? But it's a coplanar vector. समझ में आ रहा है students? Yes, sir. Yes, sir. Now listen carefully. If in case if I have a plane XZ, the answer is, students, XZ. Can I shift this planes? Can I shift this plane? तो स्टूडेंट से शिफ्टिंग प्लेन्स का मतलब एवरीबॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना. मैंने बोला शिफ्ट प्लेन YZ, तो बोलोगे सर शिफ्टिंग प्लेन YZ का मतलब, ध्यान से देखना, ये जो प्लेन है इसको मैं पूरा शिफ्ट कर रहा हूं पैरेलल टू इटसेल्फ. तो अगर प्लेन शिफ्ट होता है तो वेक्टर्स कैन आल्सो शिफ्ट. दैट मींस शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. अभी ध्यान से सुनना. Shifting of vectors, when I said about triangle law of vector addition, I shifted the vector parallel to itself. उसका मतलब क्या था? वो वेक्टर शायद दूसरे प्लेन में था, ये वेक्टर शायद दूसरे प्लेन में है, तो मैंने शिफ्ट कर दिया प्लेन्स को. तो I can shift the vectors we consider. So you can shift the vectors by shifting the planes. I can shift YZ parallel. लेकिन जब भी शिफ्ट करोगे, जब भी प्लेन्स को शिफ्ट करोगे, तो they should be always shifted parallel to itself, not randomly. यानी अगर मैं YZ को शिफ्ट करूंगा तो YZ पैरेलल हो जाएगा, अगर मैं XY को शिफ्ट करूंगा तो XY शिफ्ट हो जाएगा, अगर मैं XZ को शिफ्ट करूंगा, देखो XZ, this is how they are all going to shift parallel to itself. And if I shift plane parallel to itself, indirectly students, I am shifting a vector parallel to itself. क्योंकि अगर ये पूरा प्लेन YZ यहाँ पे आ गया, of course उसके सामने वाला फेस ले रहा हूं मैं, ये खोखा है, ये खाली खोखा है, अ बॉक्स, तो यहाँ का प्लेन और यहाँ का प्लेन दोनों का लेंथ डायमेंशन सेम ही होगा. तो अगर मैं बोलूं कि ये साइड मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली आई एम शिफ्टिंग द वेक्टर्स आल्सो. इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All Yes, of sir. you, all the students who are into the group, all Yes, sir. 22 students, please. The new students who have joined in, are you all clear with that? जो नए students आए हैं, please don't worry about Yes, it. sir. Okay? Yes, sir. New students Yes, जो sir. भी है, please, अगर तुम्हें जरा भी थोड़ा सा भी discrepancy हो, okay, Panchal, okay, Maria, please, Maria, are you getting it? Yes. Daria, are you getting it? Shivardhan, Maria, what about you? Are you getting it, Maria? You're not responding? Yes, sir. Okay, fine. So we consider, I told you about unequal vectors, negative vectors, null vectors, direction is arbitrary, कहाँ पे भी जा सकता है, anti-parallel vectors का मतलब क्या, collinear vectors का मतलब क्या, coplanar vectors का मतलब क्या, lying in the same plane. Shifting planes का मतलब क्या हुआ, shifting vectors parallel to itself we consider. Can I erase this now completely? Sir, can I write it? Yeah, why Yes. not? If you see one thing, if you are writing it, write down correctly, and when you finish it off, please do unmute yourself and tell me this are completed. Kindly erase. So I'll erase. Okay, you can copy it on it. So I have a Okay, question. जो भी लिखो सही लिखना, students please, and refer. Written is remembered. अगर नहीं लिखोगे तो सब भूल जाओगे वापस. Sir. Hello. Yes, Shri, you want to say something? Yeah, sir. I have a question. Can you be loud? Your sound is too low. You're very away from your mic, my dear. Take the mic very close to you. Mm, The sound is बहुत, या तो volume बहुत कम है, volume को loud करो. So can you hear me now? Still not. हाँ बोलो फिर भी. So I was asking that for coplanar vectors, does it necessarily need to be unequal? Do the vectors have to be unequal, or can they be equal and still? Can be equal also. Can be equal. चलो मैं और एक वेक्टर ले लेता हूँ यहाँ पे, ले लो ना. बस दोनों equal वेक्टर है. Same direction, same magnitude. Okay, Okay. parallel भी लगा दिया मैंने. Same vectors. They are equal vectors. They can. Okay, sir. Okay. Thank you.
So, Yes. so can you explain the arbitrary direction once again? If you try to move to east and then you come back to west and reach at same point. Okay. Yes. Agreed? Sir. Yes. So Sir. now if somebody asks you, where are you going to go from here? You'll say anywhere. Anywhere. That anywhere direction is anywhere from here onwards. You can go anywhere in that case because it's the null vector. That means you have reached a particular point, and from there, if you want to go anywhere, that is called arbitrary, random. Randomly, you're going anywhere from there. Okay, sir. Thank you. Okay. Null vector magnitude is 0, but direction can be anywhere. You went out from home to your school, and you came back from school to your home, and after coming back home, that's a null vector. The displacement is 0, and now from there you can go anywhere. You can go at your friend's place. You can go at your uncle's place. कहाँ पे भी तुम जा सकते हो. That is arbitrary हो गया. Okay, sir. Yes. I'm done. Okay, fine. Okay, students. Can you see these two diagrams? Are the two Yes, diagrams? I have shown two blocks, and both these blocks I'll consider to be identical. Students, ये ध्यान रखना, दोनों block identical. Okay. दूसरा, if in case if you try to consider, where did I place this two blocks? मेरे को बताओ. कहाँ पे मैंने दोनों blocks को रखे हुए हैं according to you?
in a table-like structure. So what is a table called as? Plane. At present, The you are surface studying is called as a plane. Plane. A plane. Who said that? Plane. Who said that? Who said that? Plane. Ashmita. वेरी गुड अश्मिता. देखो अभी मैंने सिखाया, इसके पहले ही मैंने प्लेन के बारे में बताया और उसका एग्जांपल्स भी मैंने दिया. प्लेन का मतलब क्या, मैं तुम्हारे हिसाब से मैं जो व्हाइट बोर्ड में यूज कर रहा हूँ वो प्लेन है. अगर तुम सपोज लेक्चर्स में होते तो वहां पर भी व्हाइट बोर्ड होता या ग्रीन बोर्ड होता या ब्लैक बोर्ड होता तो वो प्लेन है. तुम्हारे घर के अंदर अभी राइट नाउ तुम you're sitting and the desk which you see it, that is also a plane. The sky is also a plane. तो ये भी तुम्हारा प्लेन ही है. यानी मैंने कहाँ पे ब्लॉक को ड्रॉ किया है? सर आपने ब्लॉक को लिया है in a given plane. Now Ashmita, if she tries to keep in this manner, अगर उसने ऐसे रखा हाथ को, लेफ्ट हैंड को, तो वो अज्यूम कर सकती है कि दिस इज एक्स वाई. तो z परपेंडिकुलर हो गया है ना. ये देखो ना, प्लेन ऐसे रखा, प्लीज पे टेंशन, लेफ्ट हैंड ही लिया मैंने और मैंने ऐसे रखा. Now Ashmita can take x and y and z is perpendicular. Agreed. Suppose if somebody says x and y over here, x perpendicular, y लिया तो ये z आ जाएगा. That changes accordingly to a person to person, doesn't matter. So what did I do is I'm trying to take one plane in both the cases. Means I'm trying to take this as x-axis and I'll take this as y-axis. Same way, I'm taking this as x-axis. I'm taking this as y-axis. So can I say z-axis will be perpendicular to this? Z-axis will be perpendicular to this. क्या ये clear हुआ everybody? Yes, sir. Yes, All sir. of you. See the way I'm putting it. Yes, sir. X, Y and Z. Agreed? यानी z एक्सिस अगर मैं लेता हूं तो स्टूडेंट्स कहने से ये z एक्सिस अगर मैं ये एक्सिस को शिफ्ट करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर ये एक्सिस को इमेजिनरीली मैं शिफ्ट करता हूं, शिफ्ट करो शिफ्ट करो शिफ्ट करो शिफ्ट करो, तो कहना से हाँ सर, अगर यहाँ से कोई ब्लॉक के ऊपर ऐसा कोई हम डॉटेड लाइन दिखाते तो इट विल बी अलोंग z एक्सिस. यहाँ से अगर मैं कोई डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखाऊंगा तो दैट इज आल्सो अलोंग z एक्सिस. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. all the students sir. who are within Yes, the session, sir. please, Yes, all sir. 23 students. जो नए students हैं, Yes, sir. they also Yes, sir. clear. Okay, please, all the new students also, they please do a reply and respond. Yes, sir. Don't take anything. अगर कुछ भी तुम्हें कहाँ पे भी तुम्हें फील होता है कि नहीं ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिंदास, when I halt myself, जब मैं रुकता हूँ ना स्टूडेंट्स, अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो या तुम वहां पे पोस्ट करो कि सर आई वांट टू नो इट, या वापस एक्सप्लेन करो. आई हैव नो प्रॉब्लम, आई गेटिंग इट, आई डू अंडरस्टैंड इट्स योर इनिशियल सेशंस और प्रीवियस भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, दैट आल्सो यू कैन गो थ्रू इट, नथिंग टू वरी अबाउट इट. ओके, और तुमने ज्यादा मिस नहीं किया है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, दोस स्टूडेंट्स हु आर न्यू, यू ऑल हैवंट मिस्ड मच. ओके, तो यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक्स के डायग्राम दिया है और दोनों ब्लॉक्स के डायग्राम जो मैंने बताया हुआ है स्टूडेंट्स, ओके, दे आर कंसीडर्ड टू बी इन अ गिवन प्लेन. व्हिच प्लेन? एक्स वाई प्लेन. दिस इज आल्सो एक्स वाई प्लेन. नाउ प्लीज पे अटेंशन. नाउ what am I trying to make you understand? I'm trying to make you understand concurrent vectors. Which vectors? Concurrent. Now before going for this, can anybody tell me what do you mean by the word concurrent? Concurrent का मतलब क्या students, बताओ? It starts from a point, from one point. One point. Originating from one point. Absolutely correct. Suppose if I raise a question to you all, और ये सारों को आना चाहिए, जितने भी students right now inside the class में 23 students, सारों को ये आंसर आना चाहिए. Well, I've learned it in class 9, back in 10th. Question मेरा ये है, if I give you an equilateral triangle, okay, if I give you an equilateral triangle in that case, then where does the incenter, circumcenter, orthocenter and centroid lie? On one same point. Equilateral triangle. Yes, Upendra? On one same point. That means can I say all are concurrent? Yes. अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल से कॉन्करेंट का मतलब मैं बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले इसको समझने पहले कॉन्करेंट समझना जरूरी है ना. अगर सपोज मैंने तुम्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या? ए बी सी, हाँ सर सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और ये 60 डिग्री है. तो ये तुम लोगों ने 9वीं या 10वीं में पढ़ा हुआ है, 9th और 10th में you have learned it. अगर सपोज मैंने बोला what exactly circumcenter is? What exactly circumcenter is? A point of intersection of the perpendicular bisectors. What is incenter? Point of intersection of the angle bisectors of all the three angles. What exactly orthocenter? So point of intersection of the altitudes. What exactly centroid? Point of intersection of the medians.
ये सब तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रियोइड, सबके सबके अलग अलग टर्म्स है। अगर किसी ने सी बता दिया ना यहाँ पे सेंटर में, तो उसका मतलब ये सर्कम सेंटर होगा। अगर किसी ने यहाँ पे आई बता दिया तो उसका मतलब ये इन सेंटर हुआ। अगर किसी ने ओ बता दिया तो उसका मतलब ये ऑर्थो सेंटर हुआ। और किसी ने जी बता दिया तो उसका मतलब सेंट्रियोइड हुआ। तो फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल स्टूडेंट्स, ये हमेशा कॉन्करेंट होंगे, सारे पॉइंट्स एक के ऊपर एक होंगे, यानी दे ऑल कॉन्करेंट, वन एंड द सेम पॉइंट। ओके, सो दीज आर कॉन्करेंट। ओके, तो कॉन्करेंट का वर्ड समझ में आया। अभी जैसे मैंने नीचे लिखा वेक्टर्स, तुरंत तुम्हारा दिमाग दौड़ना चाहिए। नाउ कैन एनीबॉडी गिव एन आंसर फॉर कॉन्करेंट वेक्टर्स? चलो बताओ। पढ़ना नहीं प्लीज, इफ यू हैव योर मॉड्यूल्स, इफ यू हैव योर नोट्स, डोंट रेफर योर नोट्स राइट नाउ। नोट्स तुम रेफर करना, लेकिन अभी जब ये क्वेश्चन पूछना हो तो देख के आंसर मत दो स्टूडेंट्स, बिना देख के आंसर दो। So may I? एनीबॉडी, व्हाट आर कॉन्करेंट वेक्टर्स, कैन यू टेल मी? Sir, two or more vector intersecting at the same point. Very good. Approaching either two or more vectors, answer सुना, two or more vectors approaching at a point or leaving from a particular point. इसलिए तुम्हारे देखो ना, ये डायग्राम बना है, ध्यान से देखना। सपोज ये पहले ब्लॉक के अंदर तुम्हारे फ्रेंड्स है, ओके, जो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक ने फोर्स अप्लाई किया, ध्यान से सुनना, एक ने फोर्स अप्लाई किया इस तरफ F1, दूसरे ने फोर्स किया इस तरफ F2, एग्रीड। तीसरे ने फोर्स अप्लाई किया F3, और ये सारे वेक्टर्स है F1, F2, F3। आर ऑल थ्री फोर्सेस, ध्यान से सुना, आर F1, F2, F3, आर F1, F2 and F3। Ritesh, you want to go to school? Ritesh, Bharti, Yes, sir. why which school you are from, my dear? Oxford Public School. Where it is Oxford, where? Charkop, Sector 5. Okay, Sector 5, yes, I heard it. It has an orange, ना, बड़ा ग्राउंड है ना वहाँ पे, बहुत बड़ा ग्राउंड है ना ऑक्सफोर्ड का। हाँ सर। तो आज क्या है वहाँ पे? सर आज मेरे को अपना 9th का रिपोर्ट कार्ड देने जाने का है। ओके, तो लेक्चर्स मिस होगा क्या तेरा? हाँ सर। तो अगर लेट हो सकता है तो ट्राई कर लेट, या अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका वापस तू वीडियो लेक्चर्स देखना जरूर। ओके, आई विल बी पोस्टिंग इट। ओके, ठीक है। मैं दे दूंगा इनको, सेंटर्स को दे दूंगा, सेंटर्स विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। ओके, ओके सर। या यू कैन गो टू द यूट्यूब लिंक आल्सो डायरेक्टली, अगर नहीं Yes, पोस्ट हो रहा है तो बिंदास यूट्यूब लिंक पे जाओ। ओके, यस। लेकिन पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना कि तू लेक्चर मिस कर रहा है। हाँ सर। ओके, गुड। नाउ सी, ये तीनों फोर्स देखो, F1, F2, F3, ये तीनों फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अभी मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, F1, F2, F3, आर दीस थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन अ गिवन प्लेन? कम ऑन, टेल मी दैट। Yes, they are. Of course, they are all acting parallel to the surface itself along the plane. यानी ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, वेक्टर F1, वेक्टर F2 and वेक्टर F3 are along the plane, along the xy plane। उसका मतलब क्या हुआ, ये सारे कौन से वेक्टर्स हुए? कोप्लानर वेक्टर्स। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, कोप्लानर वेक्टर्स है। बट आर दे एक्टिंग एट द सेम पॉइंट? सपोज अगर यहाँ पे मैंने लिखा G, ये है सेंट्रॉइड G, are they acting at the same point? Yes, Yes. all three vectors act at a point. So what are these vectors are called? These vectors are called to be concurrent vectors. So F1, F2 and F3 are called concurrent vectors. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और तुम ध्यान से देखो तो सबके एरो हेड्स मीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी का डायग्राम अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो, इसके एक का एरो हेड, ये दूसरे का एरो हेड और ये तीसरे का एरो हेड, ये तीनों एरो हेड एक जगह पे मीट हो रहा है, F1, F2, F3। यानी कॉन्करेंट वेक्टर्स का मतलब क्या? अगर इफ द वेक्टर्स आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, yes, they are called as concurrent, they are concurrent vectors। लेकिन जब भी मैं डायग्राम को देखो तो कॉन्करेंट साथ में कोप्लानर भी है। अभी तो दूसरा डायग्राम दे दो। दूसरे डायग्राम में मैंने क्या किया है, अभी तुम और तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर्स वो फोर्स लगा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, कोई फोर्स लगा रहा है इस तरह,
कोई फोर्स लगा रहा है इस तरफ, कोई फोर्स लगा रहा है इस तरफ, सॉरी, okay, that's the force is acting. Now somebody is trying to exert force in this direction, somebody is trying to exert force in this direction, somebody is trying to exert force in this direction. Agreed? यानी ये F1 एक कोई फोर्स लगा रहा है, F2 ये दूसरा कोई फोर्स लगा रहा है, ये तीसरा फोर्स लगा रहा है, चौथा और एक है जो ऊपर की तरफ उसको खींच के लेके जा रहा है। यानी ये सोचो कि ये ब्लॉक के आजू बाजू मैंने हुक दिया है एंड यू आर टाइंग अ स्ट्रिंग और पुल कर रहे हो, यानी ये कौन सा फोर्स है? पुशिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो जाएंगे? पुलिंग फोर्स। तुम लोग ने पढ़ा है फोर्स इज अ पुश और पुल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्स इज अ पुश और पुल। तो यहाँ पे ये Yes. सोचो ना कि पुश हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पुल, यानी कोई सामने की तरफ से पुल कर रहा है, कोई इस तरफ से पुल कर रहा है, कोई इस तरफ। अभी तुम देखोगे F1 F2 F3 और F4 कोई ऊपर से ऐसे थ्रेड बांधा हुआ है, एक यहाँ पे हुक है, ध्यान से देखना, सोचो कि यहाँ पे एक छोटा सा हुक है, उसके अंदर थ्रेड बांधा हुआ है और वो थ्रेड को ऐसे ऊपर की तरफ खींच के लेके जा रहा है। तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, आउट ऑफ F1 F2 F3 and F4 which are coplanar vectors? None of them. Why Sir, not? F1 F2 F3 are coplanar. F1, F2, and F3 are coplanar. Yes, but is F4 coplanar? No. 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 F4 is where? F4 is in which direction? Along Z axis. Z axis. समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं देखूं तो मेरा F1 F2 and F3 are coplanar vector, लेकिन F4 coplanar vector नहीं है। But are they concurrent vectors? Yes. Yes. F1 F2 F3 F4 all are concurrent vectors. Yani are they meeting a point or they are starting from a given point? Starting from a given. यानी सबका टेल्स आ रेड पॉइंट। यानी यहाँ पे देखो एक फोर्स इस तरफ जा रहा है, एग्रीड, एक फोर्स इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है और चौथा वाला ऊपर जा रहा है ना? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? when the vectors start from a given point, when a vector start from given point, such vectors are called to be concurrent vectors. or when the vectors approach at a particular point, all vectors approaching, यानी सबके अगर heads एक point पे आता है concurrent होगा, अगर सबके tails एक point पे होते हैं तो concurrent होगा। ये समझ में आया concurrent vectors का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. और इसको Yes, physics में मैंने sir. बता दिया। मैं अगर चाहता तो मैं ABCD लिखता, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स आई कैन जस्ट पुट मैथमेटिकल वे। अभी तो मैं ऐसा पता चला तो जब भी मैं डायग्राम दूंगा या फोर्स के ऊपर होगा तो तुरंत में पता चल जाएगा। और कॉन्करेंट का मतलब भी मैंने बता दिया, फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स, सी का मतलब सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑटो सेंटर, सेंटर आर ऑल कॉन्करेंट। शैल आई इरेज दिस? No, sir. After that. ओके, you finish, let me know what happens.
This will be done. Yes, sir. Done, sir. Good. Okay, students, I told you about collinear vectors, I told you about coplanar vectors, I told you about concurrent vectors also. Okay, now we speak about multiplication of a vector with a integer. First of all, students, मुझे बताओ integers क्या होते हैं? Any number. I mean positive, Positive, negative, or negative, zero भी हो zero. सकते हैं. अगर suppose मैं अगर कोई vector लेता हूँ, ध्यान से सुनना. Let us say that n is an integer. Okay, if I give you a vector a, okay, if I say n times vector a, if I give you minus n times vector a, and if I say n is equal to 2, तो उसका मतलब क्या होगा? बोलो. So the second one will be the positive into 2 time vector, and then the third one will be the negative. Yes. समझ में आ रहा है? यानी n is an integer we consider a plus n or minus n. अगर मैं इसको n belongs to integer में ले रहा हूँ, n belongs to an integer and n is equal to 2 में ले लेता हूँ, तो कहने से प्लस और माइनस 2 होगा. ये i का मतलब इंटीजर स्टूडेंट्स. यानी मैंने किया क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना. दिया है मुझे वेक्टर है, लेकिन मैंने इसका डबल कर दिया है. हेलो स्टूडेंट्स, listen carefully. Suppose now if I say vector a, if I try to draw it, let us assume that this vector a is equal to, suppose if I say this is tail, this is head, so this is 1, this is 2 and this is 3 units. मैंने कोई वेक्टर a ड्रॉ किया है तुम्हारे सामने और उसको मैंने लिखा है 3 units. Agreed? That means the length of the arrow is 3 units. Arrowhead क्या दिखा रहा है? Direction. Is this much clear with everyone? Yes, sir. All the Yes, sir. students who went to the meeting, is it clear with everyone? sir. अगर मैंने Yes, vector sir. A Yes, लिखा sir. 3 Yes, sir. और students जो नए स्टूडेंट्स है वो भी ध्यान से सुनना. अगर मैंने वेक्टर a 3 यूनिट्स लिखा, उसका मतलब क्या है? जो एरो का लेंथ है वो 3 है, 3 यूनिट्स है. और एरो हेड क्या दिखाता है? इसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है. यानी तुम ये सोचो, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ये सोचो कि एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है एक डायरेक्शन के अंदर. आई गेटिंग इट? और वो गाड़ी का स्पीड है 30 मीटर्स पर सेकेंड या 3 मीटर्स पर सेकेंड. लेकिन अगर मैंने लिखा ट्वाइस ए, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या हुआ? Yes, that means now suppose if I write down in this manner, this is equal to twice a, and over here I'll write down minus 2a. So what I'll do, students, ध्यान से देखना, सबका starting point में same रख रहा हूँ. Are you getting it? I'm putting the starting point same, exactly same. Can you see सारे starting point एक ही direction में होगा? Are you getting it? Yes, sir. Okay. Now if I say, what about twice a? That means what you'll do? So twice a का मतलब ये कितना होगा? Multiply by 2. 2. So 3 2 से कितना 6. होगा? 6. So what about my length of the arrow? Will it be same or double? Double. यानी यही मेरा length of arrow जो यहाँ पे था, अभी वो यहाँ पे दिखाई देगा. समझ में आ रहा है? ये वो multiplication of vector. अब इसको तुम कैसे लिखोगे? Twice vector है. Is क्या equal to मैंने 6 इसका 7. डायरेक्शन चेंज किया? क्या मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया? No. नो, डायरेक्शन सेम है.
I get it? So that is twice vector A we consider. That means what is my answer? 6 unit. 6 unit. क्या ये क्लियर हुआ सबको? यानी अगर ये 3 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा था, अब ये 6 मीटर्स पर सेकंड जा रहा था, डायरेक्शन वही है। लेकिन तीसरे के लिए मैंने क्या लिखा है? -2 है। व्हाट इज नेगेटिव साइन शोस? Direction. डायरेक्शन। यस वंश, डायरेक्शन। तो देखो इसी का ऑपोजिट, पहले तो ए का ऑपोजिट इज -a, ऊपर से 2। तो अभी ध्यान से देखना, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर। एग्रीड? तो ये तुम्हारा 3 यूनिट्स, ये तुम्हारा 3 यूनिट्स, for the 3 units is somewhere or the other. Agreed? What is this will be? So this will be -2a. Agreed? So what exactly 3 to the, ये होगा 6 units. लेकिन what is the direction? What is the direction? ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? Negative. डायरेक्शन नेगेटिव। यानी अगर मैं ग्राफ के हिसाब से जाता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्राफ के हिसाब से जाता हूँ, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, तो ये ग्राफ को अगर मैं पॉजिटिव एक्स लेता तो ये ग्राफ को मैं नेगेटिव एक्स लूंगा। तो मेरी ये जो ट्रेन जा रही है वो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, ये ट्रेन जा रही है नेगेटिव एक्स की तरफ। इसी को अगर मैं डायरेक्शंस को साइन डायरेक्शन के हिसाब से ले लूं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो ये ट्रेन में क्या अज्यूम करूंगा? ईस्ट की तरफ जा रही है, और ये ट्रेन में क्या अज्यूम करूंगा? वेस्ट की तरफ जा रही है। ये अज्यूम कर रहा हूं। इज दिस क्लियर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर तुम Meaning वेक्टर को, यस, So meaning regardless of the direction, the vector's arrow will always point towards the right. Now when we denote it, for example, A vector, B that's why vector. we put a bar only. That's why we put a bar. ऐसे नहीं कि डायरेक्शन हमें उल्टा दिखाएगा, नहीं। तब जाके स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन में आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन ये होता है कि भाई अगर आप ट्रेन को इस तरफ दिखाते हो तो आप वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा हो, अगर वो ट्रेन इस तरफ जाती होगी तो क्या उसका डायरेक्शन इस तरफ दिखाओगे? नो, दैट्स व्हाई वी शो इट इन दिस वे, डायरेक्शन वैसे। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, वो तुम्हें डायरेक्शन दिखाएगा। अगर मैंने +a लिखा उसका मतलब ये इस तरफ गया, -a का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमेशा प्लस और माइनस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। Okay, sir. Agreed? Yes, sir. So this is what I speak about multiplication. So इसको if I have to consider multiplication of vector. Okay. In this itself only, I'll try to go for one more term because there is some space over here. Listen carefully. I'll speak about position vector. मैंने क्या लिखा है? Position vector. Can anybody tell me what exactly mean by position vector, students? Samya. Position vector का मतलब क्या? Anybody? Samya. Yeah, बोलो. Sir, if vector give a position of any object with the reference to some specific point. Wait a minute. Panchal has put a question which I missed it because I didn't see the chart. Sir, does the magnitude of vector represent the speed also? Of course, my dear Panchal. अगर तू magnitude बोलेगा ना तो magnitude can represent, लेकिन अगर मैं सिर्फ v with an arrowhead बताता हूँ, if I try to put forward v with an arrowhead, Panchal, अगर मैं v with an arrowhead बता दूंगा तो ये हो जाएगा वेक्टर वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं सिर्फ v लिखूंगा या v with an arrow with a bracket, तो ये हो जाएगा स्पीड। तो ये जो स्पीड हम बताते हैं वो मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो बताते हैं वेक्टर वो होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तूने पंचल तुमने लर्न किया है, वेक्टर्स आर दोज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। लेकिन मैग्नीट्यूड we consider are only scalar to entity. So scalar part will be speed, vector part will be velocity. तो हम बोल सकते हैं वही अगर फंक्शन अगर मैंने बोला s और s बार, तो क्या बोलेगा तू? तो s का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस। s बार का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट।
यानी ये हुआ मैग्नीट्यूड जो कि स्केलर है, और ये होगा वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. And this all you will have learned it in your class 9th. Okay, somebody was answering now. Somebody was answering for position vector. Yes, can you Yes, say sir. it once again for position vector? Sorry, a vector which show about any given object with reference to some specific point. Absolutely correct. It's a position of that particular point. यानी अगर तुम्हें किसी का position बताना है, position of a particle at a particular instant, position of a particular instant का मतलब उस टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ की तरफ है, उसके लिए ऑब्जर्वर की जरूरत है. विदाउट ऑब्जर्वर तो तुम पोजीशन बता नहीं सकोगे. तो अगर मैं खड़ा हूँ, सपोज रोड पे खड़ा हूँ और तो मैंने किसी को देखा जाते हुए, और उसी टाइम पे मेरे को किसी ने फोन किया, तो मैं बोलूंगा हाँ अभी पोजीशन शायद वो वहां पे उस दुकान में खड़ा हुआ है, उसी दुकान में खड़ी है. आई कैन शो द पोजीशन इन दैट केस. तो ये हम पोजीशन वेक्टर आर के हिसाब से बताते स्टूडेंट्स. यानी अगर तुम्हें पोजीशन बताना है फिजिक्स के रिलेटेड, तो हमेशा तुम्हारा पोजीशन जो बताओगे किसी भी वेक्टर का, वो जनरली होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. यानी अगर सपोज ध्यान से सुनना, अगर सपोज तुम्हारे घर के अंदर, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, तुम्हारे घर के अंदर एक हनी बी आ गया और वो हनी बी फ्लाई कर रहा है. ओके, हनी बी इज फ्लाइंग समवेयर इनटू योर होम. उसी टाइम पे तुम खड़े हो, ओके, और तुम उसको देख रहे हो. ओके, उसी टाइम पे तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्वेश्चन पूछा, बेटा तुम हनी बी का मोशन डिफाइन करो. डिफाइन करने के लिए तुम्हें कहाँ पे खड़ा होना जरूरी है? अगर तुम्हें हनी बी का मोशन को डिफाइन करना है, तो स्टूडेंट्स कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर यू टू स्टैंड एंड ऑब्जर्व द मोशन ऑफ हनी बी? एनीबडी? Parallel to the व्हिच इज honeybee. Pardon? Opposite to the honeybee. Opposite to the honeybee. That's what Smith is saying. Anybody else? अगर तुम्हें हनीबी का मोशन को डिफाइन करना है, तुम्हारे घर के अंदर एक रूम के अंदर तुम खड़े हो और उसी टाइम पे हनीबी भी आया है, उसका मोशन डिफाइन करना है, तो वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू स्टैंड एंड डिफाइन द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हनीबी? In the same Anybody else? in the same direction. Indeed, In the same in the direction. same direction. Agreed. Fair. Any other answer? Parallel to it. Come on. Yes, what, Kevin? Parallel to it. Parallel to it. अब देखो हनीबी है, हनीबी का तो मोशन कहाँ पे भी होगा स्टूडेंट्स? तुम्हें वेल डिफाइंड मोशन करना है तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, सर आई विल स्टेशन माई सेल्फ एट 0,0,0. मैं यहाँ पे खड़ा होके हनीबी का मोशन डिफाइन करूंगा. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस. स्टूडेंट्स तुम्हारा घर देखो ना, राइट नाउ तुम लेक्चर्स के अंदर बैठे हो, जिस रूम के अंदर बैठे हो, क्या तुम्हारा रूम सर्कल है? बताओ, जितने भी लेक्चर्स में भी बैठे हुए हैं, 24 जन बैठे हुए हैं, तो क्या तुम्हारा घर सर्कल है? No. तो ये पोजीशन बता सकते हो नहीं ना? या तो तुम्हारा घर स्क्वायर फॉर्म में होगा या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा. एग्रीड? Yes. और वो हॉलो यानी 3 डायमेंशनल हो गया, एक्स वाई जेड. तो मुझे बताओ, अगर कोई मक्खी आती है, हनी भी आता है, बटरफ्लाई आता है, उसका मोशन डिफाइन करना है, तो विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर यू टू डिफाइन द मोशन? अपने आप को कॉर्नर कर लो ना, अपने आप को कॉर्नर कर लो, किसी वॉल के कॉर्नर की जाके खड़े हो गए. क्योंकि अगर तुम सेंटर में खड़े हो गए, हनी भी तुम्हारे पीछे गया, तो क्या तुम पीछे घूम दोगे? तुम्हें, मैंने क्या बोला, तुम्हें डिफाइन करना है उसका मोशन अच्छी तरह. तो तुम कॉर्नर पे खड़े होकर अभी पापा ने पूछा हनी भी कहाँ है, तो ऐसे हाथ दिखाओगे. हनी भी कहाँ है, ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, ये दिखाओ. तो ये जो हाथ दिखाना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पोजीशन वेक्टर. लेकिन उसके लिए ऑब्जर्वर जरूरी है. विदाउट ऑब्जर्वर तुम नहीं बता सकते पोजीशन. यानी ऑब्जर्वर एक मस्ट. अगर ऑब्जर्वर कोई प्रॉब्लम में नहीं दिया हो स्टूडेंट्स, तो हम अज्यूम करते हैं कि तुम्हारा ऑब्जर्वर ओरिजिन पे खड़ा है. ओरिजिन का मतलब क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir. All of y'all, क्या सुस्ता yes sir. Yes, sir. All of Yes, y'all, or even the new students also who have joined in. Are you getting it, students? Mariam, what about you? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Fine, good. Okay. तो ये तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर इंस्टेंटेनियस पोजीशन दिखा रहा है. तो देखो, जैसे तुम्हारे पापा ने पूछा कहाँ पे, तुमने ऐसा हाथ दिखा दिया, यहाँ से ओरिजिन से शुरू कर दिया. तो ये हुआ तुम्हारा पोजीशन वेक्टर.
तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो तुरंत तुम्हारा दिमाग, जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी मैथ्स आता है 9वीं 10वीं का भी, वो आंसर दे देगा। सर ये हनी बी मेरे जो घर के ग्राउंड है उसको मैं एक्स एक्सिस का मैं लेता हूं, तो मेरे ग्राउंड के एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पे है, वाई एक्सिस से इतनी दूरी पे है, जेड एक्सिस से भी उतनी दूरी पे होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये क्या हुआ? ये हुआ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। स्टूडेंट्स ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. यानी ये Yes, sir. पोजीशन वेक्टर। अभी देखो, अभी दूसरा एग्जांपल, दूसरा, ये तो मैंने 3D में बताया, ये कौन सा है? ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। अगर सपोज दूसरा पोजीशन वेक्टर दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, दूसरा पोजीशन वेक्टर। अभी फॉर एग्जांपल तुम एक अभी रिसेंटली ओलंपिक्स हो रहा है, हमें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है आर्चरी में। एनीबॉडी नोज द नेम ऑफ द फीमेल हु गॉट इट इन द आर्चरी? Nobody. See, you all are not at all bothered, है ना? Okay. Now listen carefully, students. ये to of course a female. Even I don't know the name, but of course a So, female. Yes. my device's battery is really low. Shall I take just 2 seconds to join from another? ये 5 देना चाहिए। तुम लोग बैटरी वगैरह चार्ज करके, फुल्ली चार्ज करके बैठते नहीं हो क्या? इतना उपेंद्र ऐसे नहीं करते माय डियर। ओके फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल टेक यू बैक। ओके सी वन थिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम टेकिंग यू ऑल बैक, आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन दैट केस। जेन्युइन रीजन होगा तो सब जाए इन दैट केस। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब भी लेक्चर्स हो, कोई भी लेक्चर्स हो, हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स अपना सेफ्टी रखो, ट्राई टू वर्क आउट, ठीक है? गैजेट्स को सिक्योर करके रखो, ट्राई टू गो फॉर अ बैटरी बैकअप प्रॉपर्ली इन दैट केस। लैपटॉप्स के ऊपर, पीसीस के ऊपर तुम ज्यादा देखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ओके अब ध्यान से देखो, अब ये 3 डायमेंशन, अभी 2 डायमेंशन के ऊपर देखते हो, ध्यान से देखना। सपोज तुम ऐसा कोई ग्राउंड में बैठे हुए हो और वहां पे एक कार रेस हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये जो कार रेस हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। गाड़ी जो घूम रही है, जो कार जो घूम हो रही है, मूव हो रही है, ये सेंटर है, वो सर्कुलर पाथ में घूम हो रही है, मूविंग इन अ सर्कल, और तुम ऊपर से देख रहे हो। आई गेटिंग इट ना? सपोज अगर तुम्हें यहाँ पे सेंटर पे खड़ा कर दिया और फिर तुम्हें पूछा कार कहाँ पे, और सपोज कार एट अ पर्टिकुलर टाइम कार यहाँ पे है, कार का पोजीशन यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ? ये भी तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हुआ, है ना स्टूडेंट्स? ये भी तो पोजीशन वेक्टर हुआ। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो सर तुम बोलोगे ये क्या है सर? ये तो 2 डायमेंशन है। ये तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी पता है, जेड एक्सिस तो X है ही and नहीं। Y. यस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ध्यान से देखना, ये कार एक्स एक्सिस की दूरी पे ये है, वाई एक्सिस की दूरी पे, तो इसका कोऑर्डिनेट्स होगा x, y। यानी ये पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, और ये पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z। क्योंकि ये किसमें है? ये है स्पेस में और ये है प्लेन में। 3D का मतलब स्पेस, 2D का मतलब प्लेन। कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई होता ना हवा में, तो वो स्पेस हो गया। अगर तुमने ईगल को देखा ना फ्लाई करते हुए, वो स्पेस हो गया 3 डायमेंशनल में। अगर तुम काइट फ्लाइंग करते हो तो वो पतंग चलाते हो, वो क्या है? स्पेस में है। लेकिन ये जो 2D प्लेन है, अगर तुम साइकिल चलाते हो रोड पे, या कार चलाते हो रोड पे, या ट्रेन चलती है रोड पे, तो वो क्या होगा? 2D प्लेन भी कंसिडर। क्या ये क्लियर हुआ? पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स, Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Okay, so before going for Yes. vectors, a student should know what exactly vectors are in that case. Is that clear? So when you go for vector students, these vectors we consider can have a certain position. We can show about the instantaneous position of the particle, and instantaneous position can be shown with respect to vectors also in that case. And that is R bar. Can I erase this? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? Yes, Just a sec, sir. Pardon Purvi? I need to write the position vector. Okay.
Done? Yes, sir. Okay. Students, hope the audio and video is fine with you all. सबको audio video fine है? Okay, 100%. Good. Okay, students. After going for the concept of position vectors, okay, I told you about multiplication of vector. I told you about position vector also. Now we speak about the concept of unit vector, students. अब ध्यान से सुनना, unit vector का मतलब क्या है, students? Unit vector, students, I will assign with a variable u. लेकिन इसके ऊपर मैं क्या करवाऊंगा, इसको एक टोपी पहना देते हैं. तो ये जो मैंने एरर बता दिया ना, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कैप. ये जो ऊपर मैंने एरर बताया ना, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, कैप. ये क्या दिखाता है, शोज डायरेक्शन. यानी जो टोपी पहनाया हुआ ये कैप है, वो सिर्फ क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताता है. Yani if somebody asks you, sir, what do you mean by unit vector, then what is the answer you say? Unit vector shows only direction. ध्यान से सुनना, यूनिट वेक्टर हमेशा सिर्फ डायरेक्शन ही बताएगा. किसी ने पूछा सर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड 1 unit. of unit vector is equal to 1. That is unity. What is the magnitude of unit vector? 1. जिसको मैं क्या लिखूंगा, क्या ये क्लियर हुआ? Yes. अभी तुम बोलोगे ये हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है सर, आप अभी आप आगे और बढ़ो ना सर. ये क्या डेफिनेशंस कब से सुन रहा हूँ, डेफिनेशंस इक्वल, अनइक्वल, एंटी पैरेलल, कोप्लानर, कोलिनियर. अभी आगे बढ़ो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम विदाउट नोइंग दिस, एक सिंगल प्रॉब्लम तुम क्रैक नहीं कर सकोगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना. ऑल दोज न्यू स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इजी. लेकिन लिसन वेरी केयरफुली. यूनिट वेक्टर्स इज व्हाट. नाउ टू गेट द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, let us first define unit vector. How is unit vector is defined as? So if somebody asks me, is it define unit vector, so how do you define unit vector? Equal to का मतलब is defined as ratio of vector to its magnitude. क्या ये क्लियर हुआ? मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, u के ऊपर मैंने एरो हेड डाला, तो इज इट अ स्केलर और इज इट अ वेक्टर? Vector. Everybody, those who are new, Vector. they should Vector. vector. तुम लोगों ने Vector. जो स्टूडेंट्स नए हैं, स्टूडेंट्स ये रीजन मत बताना कि हमने 2 लेक्चर्स मिस किए इसलिए हमें नहीं आता है, वो रीजन मत बताओ. ये देखो, अभी अगर मैं बोलूं कि तुमने पढ़ा हुआ है तो क्या करोगे, तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन ऐसे लिखते हो, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऐसे लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हो, फोर्स ऐसे लिखते हो. तुम्हारे टीचर ने लिखा था, तुमने भी लिखा था. इनिशियल वेलोसिटी ऐसे लिखते हो, फाइनल वेलोसिटी ऐसे लिखते हो, मोमेंटम ऐसे लिखते हो. ये सब कुछ तुम लोग ने 10th में पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है. तो ये वेक्टर है. रीड. उसी के नीचे ये जो मैंने लिखा है वो क्या है, Scalar. दैट इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर. यानी देखो, ये शायद नए स्टूडेंट्स को एक क्लियरली नहीं पता होगा. स्टूडेंट्स, अभी मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने v विद एन एरो हेड लिखा है तो ये वेलोसिटी हो गया, यानी ये वेक्टर हुआ. लेकिन अगर तुम्हें स्पीड बताना हो ना, स्पीड, somebody had asked me also speed, तो स्पीड अगर तुम्हें दिखाना है तो तुम कैसे दिखाओगे स्पीड को, एरो निकाल दो ना, सिर्फ v लिखो तो आ गया स्पीड.
But now since you are in 11th standard, there is one more way of writing magnitude, और हम लिखते हैं modulus of vector v. स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनको बहुत धीरे से बता रहा हूं मैं। तुमने ये पढ़ा हुआ है 9वीं और 10वीं में, अभी तुम 11th में आया हो, तो इसी को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ये जो मॉडुलस है, modulus of v we consider is actually we consider what any vector within the modulus sign. What exactly we consider is the answer will be in positive. यानी हमेशा तुम्हारा magnitude will be always in positive. Scalar part will be always in positive. Vector can be positive, can be negative, can be zero. Students, ये मैंने explain किया था कि नहीं किया था? Vectors can be positive, negative and zero. Yes, sir. किया था कि नहीं किया? Yes, किया sir. था। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अगर सपोज तुमने पॉइंट ए, एवरीबॉडी सिंग केयरफुली, पॉइंट ए से तुमने शुरू किया, यू वॉक 4 मीटर ओवर हियर, और फिर रीच बी, और बी से तुम सी पे गए 3 मीटर्स। ओके, प्लीज एनीबॉडी हु इज न्यू स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। जो नए स्टूडेंट्स है वो रिप्लाई करो स्टूडेंट्स। तुमने पॉइंट ए से शुरू किया, तुम ईस्ट की तरफ गए, ईस्ट में गए 4 मीटर, और बी टू सी ईस्ट में गए, तो मुझे बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? क्या आंसर होगा? एनीवन हु इज न्यू? Mariam, let me see the charts. Okay, whose lectures were first? Yes, Mariam. What about you, Mariam? Dhairya, come on, answer. Pranshul, बिंदास आंसर करना, गलत भी होगा तो बिंदास, nothing to worry about it. बताओ, तुमने ए से शुरू किया, ईस्ट की तरफ गए, फिर बी टू सी 3 मीटर गए, तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 7 मीटर। From A to वेरी गुड Dhairya, 7 मीटर हुआ। लेकिन कहाँ की तरफ गए तुम? ये कौन सा डायरेक्शन मैंने बताया था? ईस्ट की तरफ गए। एग्री? तो ये 7 मीटर तुम्हारा क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ईस्टवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया तो मेरा आंसर 7। अभी और एक एग्जांपल ध्यान से सुनना, Dhairya and Mariam and all those new students, तुमने वापस ए से शुरू किया, ध्यान से देखना, और तुम बी की तरफ गए 4 मीटर, हाँ, जो ईस्ट की तरफ है। लेकिन फिर तुम्हें कॉल आया तुम्हारे फ्रेंड का, भाई मेरी तरफ आ, मेरे घर पे आना, तो तुम वापस 7 मीटर उल्टा गए, और फिर पॉइंट सी पे तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ पे पहुंचे। तो ये किस तरफ गए तुम? ये 7 मीटर किस तरफ गए? ईस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया? West. की तरफ गया। वेरी गुड। तो मेरा क्वेश्चन ये है नए स्टूडेंट्स को, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तुम कहाँ थे? पॉइंट ए पे थे, कहाँ पहुंचे? पॉइंट सी पे पहुंचे। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से इस तरफ गए, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी, न्यू स्टूडेंट्स? Sir, 3 meter. 2 meters. वेरी गुड। 3 मीटर, लेकिन किस तरफ? ईस्ट में या वेस्ट में? West. तो शुड आई राइट ऑन +3 या -3? -3. वेरी गुड। -3। देखो वेक्टर इसी लिखूंगा -3 मीटर। कोई ऐसे लिखेगा तो भी चलेगा, -1 बताना कि वेस्ट में, या तुम्हें ऐसे नहीं लिखना तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। और वेक्टर इसी इज इक्वल टू 3 मीटर ड्यू वेस्ट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. लेकिन Yes, ये sir. बहुत बड़ा हो जाता है, ये Yes. बहुत बड़ा हो जाता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये बहुत ही लिखना पड़ता है। तो फिजिक्स में हमने डायरेक्टली -3 में लिख दिया। ये समझ में आया? वेक्टर्स कैन बी एडेड एंड इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी सबट्रैक्टेड। मेरे को नेगेटिव भी आ रहा है। अभी जीरो वेक्टर का मतलब क्या? जीरो वेक्टर का मतलब क्या? यानी नल वेक्टर हुआ। यानी तुमने शुरू किया ए से, ध्यान से सुनना, तुमने शुरू किया ए, यू वेंट ए टू बी, आई वेंट ए टू बी 4 मीटर एंड आई केम बैक 4 मीटर। क्या हुआ? मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0. Null. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes. तो ये मैं बता रहा था कि ये क्या हुआ, ये है मैग्नीट्यूड, जो हम मॉडुलस में लिखेंगे। तो देखो, भले ही आंसर ये वेक्टर नेगेटिव में आ रहा है, ध्यान से देखना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव में है। 3 मीटर्स हम पॉजिटिव में लिखते हैं, जो डायरेक्शन बताते हैं वो नेगेटिव में होता है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई वाज स्पीकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स। ओके, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या स्टूडेंट्स? A unit vector is simply a ratio of vector to its magnitude.
तो जब भी कोई भी यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या स्टूडेंट्स, you can easily go for the answer. What exactly unit vector is? A unit vector is defined as, देखो ये है unit vector is defined as the ratio of, or it's a ratio of vector to its magnitude. तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यानी या तो ये फॉर्मूले को ये फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं करता है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना, ये मॉडुलस के अंदर आया, एरो डाल दिया तो उसका मतलब ये वेक्टर है। अभी तुम एरो भी नहीं डालोगे ना, ध्यान से रखना, सिर्फ एक लाइन करो, कुछ टीचर सिर्फ लाइन करते हैं तो वो भी वेक्टर ही है भाई, ये मत करो, लाइन करो वो भी वेक्टर है। तो टेंशन मत लेना स्टूडेंट्स, ये टीचर आपने एरो नहीं बनाया तो वेक्टर नहीं है, समझ में आ रहा है? It's not a hard and fast rule we consider. So what exactly a unit vector is? Simply a ratio of vector to its magnitude. सर अभी इसको समझना है, कैसे समझे? So to understand this part of it, students, please pay attention. Please pay attention. We'll try to go for certain unit vectors in different direction, because unit vector can be represented. Answer suna, can be represented. Okay, along x-axis, along y-axis, and along z-axis. In form of a unit vector can be represented along x-axis as plus or minus I cap, y-axis plus or minus j cap, and z-axis plus or minus k cap. अब मुझे बताओ ये क्या बताया मैंने? सर आपने बताया कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर करना हो, दिखाना हो एक्स एक्सिस पे तो हम आई कैप के हिसाब से दिखाते हैं, वाई एक्सिस में दिखाना तो जे कैप के हिसाब से दिखाते हैं, जेड एक्सिस पे दिखाना है तो के कैप के हिसाब से दिखाते हैं। सर आपने ये प्लस और माइनस लिखा, उसका मतलब क्या? अरे ये प्लस और माइनस का मतलब ये है कि अगर मैं पॉजिटिव साइन दिखाऊं तो उसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइन दिखाऊंगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस जे का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस। यानी ये क्या दिखाता क्या है? ये सिर्फ दिखाएगा डायरेक्शन। क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जितने भी यूनिट वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। क्या इतना क्लियर हुआ? यानी ये जितने भी वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, मारियम एंड ऑल प्लीज, जितने वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। अगर किसी ने पूछा how when can you represent unit vector can be represented along x axis, can be represented along y axis, can be represented in z axis। तो किसी ने पूछा सर कैसे पता चलेगा कि ये x y और z में है? तो सीधा तुम्हें ijk बताना है। ijk, i का मतलब along x axis, y का मतलब j का मतलब y axis and k का मतलब z axis। सर अभी आपने प्लस और माइनस क्यों बताया? क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना? तो प्लस और माइनस आई का मतलब प्लस और माइनस एक्स है ना, प्लस और माइनस जी का मतलब प्लस और माइनस वाई, और प्लस और माइनस के का मतलब प्लस और माइनस जेड एक्सिस। क्या इतना क्लियर हुआ ये? Sure. Yes. We can represent by any alphabet, right? No, my dear, you have to go for I, J, and K only. These are the only symbols used for unit vector. Unit vector is represented only by I, J, and K. You can't use any other. हाँ, लेकिन फॉर अ गिवन वेक्टर तुम उसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हो इन दैट डायरेक्शन, वो तुम बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला दिस डायरेक्शन, ओके, ध्यान से सुनना, टू मेक दिस क्लियर, लिसन केयरफुली, टू मेक योर क्वेरी आल्सो क्लियर, ध्यान से सुनना। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बता दूं, स्टूडेंट ध्यान से अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ओके। ये ब्लॉक को मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ and I am applying force 6 न्यूटन। मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, तुम्हारे हिसाब से ये 6 न्यूटन किस तरफ जा रहा है? ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ड्यू ईस्ट। अभी देखो, अभी ज्यादा ईस्ट की तरह, ईस्ट की हिसाब से मत पकड़ो, अभी तुम एक्स वाई जेड के हिसाब से पकड़ो। अभी तुम्हारा फिजिक्स ईस्ट और वेस्ट में, क्योंकि ड्यू ईस्ट ड्यू वेस्ट बहुत लंबा गिर जाता है,
है ना? तो तुम कौन से एक्सिस के हिसाब से जाओगे? एक्स वाई जेड X axis. X axis. X. वाई भी बोल सकते हो। अगर मैंने वाई लिया तो दूसरा एक्स हो जाएगा। तो हम जनरली हम एक्स पकड़ते हैं यहाँ पे, तो सब लोगों ने एक्स पकड़ा तो एक्स है। और प्लस एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बाय आई कैप। तो क्या करोगे तुम? प्लस आई कैप लोगे या माइनस आई कैप लोगे? Plus I cap. Plus Plus I. I cap. देखो तुम ही आंसर दे रहे हो, मैंने कुछ नहीं पूछा, तुम ही आंसर दे रहे हो। यानी अरे सर उसका मतलब ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो 6 न्यूटन प्लस आई कैप। अरे सर ये तो बहुत छोटा हो गया, कितना फास्ट हो गया। यानी स्टूडेंट जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम देगा तो कैन राइट आउट दिस मैनर, a force acting, everybody think carefully, a force acting on a body is plus 6 न्यूटन आई कैप। बस इतना लिखेंगे। इससे तुम्हें क्या पता चलता है बताओ? इससे तुम्हें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये F क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? Vector. वेक्टर। 6 न्यूटन क्या होगा? इज इट अ स्केलर और वेक्टर? ओनली 6 न्यूटन, Scalar. only 6 Newton, scalar. See, Shri is answering. Everybody be with Shri. 6 Newton is scalar. Scalar means, is it showing magnitude? Yes, sir. Plus I, what does plus I shows? The direction. The direction. So can I say, the answer देखना, a unit vector is the ratio of vector to its magnitude. देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर Yes, sir. रेशियो वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ आई कैप, गेट, यानी मैं इसको एफ कैप भी लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू एफ बार भी लिख सकता हूं, और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एफ बार। ये देखो, यूनिट वेक्टर is defined as the ratio of vector to its magnitude, or I can also write on F upon F. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज अभी प्रॉब्लम्स के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम मत देना। सर हाउ डिड यू गेट Sir, expense one again. स्मिथ बोल रहा है, फाइन डजंट मैटर स्मिथ। देख मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि यूनिट वेक्टर सबसे पहले क्या दिखाता है, कैसे डायरेक्शन ही दिखाता है बस। तो अगर मैंने कोई ब्लॉक लिया है और उसके ऊपर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और वो फोर्स 6 न्यूटन है, और मुझे ये बताना है कि 6 न्यूटन ड्यू ईस्ट जा रहा है, तो ड्यू ईस्ट का मतलब पॉजिटिव हुआ। और इसको हम, अगर मैं अज्यूम करूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मेरा, तो मैं इसको प्लस आई लिखूंगा। तो इसी को अगर मुझे उसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने क्या किया, आई कैप को एक तरफ लिख दिया, एफ को एक तरफ लिख दिया, 6। अभी देखो इनको मल्टीप्लाई करो, एफ ये आ गया 6 न्यूटन इनटू दिस, और ये प्लस आई कैप लिखो, चलेगा? मोर प्रिसाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो एफ बार इज इक्वल टू प्लस 6 न्यूटन आई कैप, यानी ये क्या हुआ? डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ही हुआ। यूनिट वेक्टर इज अ रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। अभी मुझे ये बताओ स्मिथ, ये बताओ कि जो प्लस आई कैप है वो क्या दिखाता है? सिर्फ डायरेक्शन ही दिखाएगा Positive. ना, वो सिर्फ क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है। Direction. पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा 1 unit. 1 यूनिट होगा बस। फोर्स वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना फोर्स लगाया तुमने? 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो स्केलर पार्ट हो गया। Okay, sir. एग्रीड? Yes, sir. उसी को अगर मैं और दूसरी तरीके से लिखता हूं तो ये भी मैंने यूनिट वेक्टर लिया है। फोर्स यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। आई कैन पुट इन दिस मैनर आल्सो। एग्रीड? Yes, sir. All of you all, now all the students who are into the meeting, Yes, sir. all 21 students, now, Yes, this is the sir. time. Yes, sir. This is the Yes, time sir. Nashik aa raha hai. There are some students who are trying to run away from the meeting. Please, ये ना चलबे, हाँ, ये ना चलबे, please. This is something wrong. वापस मैं लूंगा नहीं. This is really wrong. Students who are leaving the meeting and then later on will say, "Hey sir, I'm not able to get it. I'm missing it out. I'm not able to score." वो नहीं होगा. उनको entertain नहीं किया जाएगा students. अपने फुर्सत से तुम, चलो नेटवर्क इश्यू है फाइन इनफ, लेकिन तुम निकल जाते हो कि चलो लास्ट के 15 मिनट है, 10 मिनट है, निकल लो करके, तो उसका मतलब आए क्यों थे फिर? नो नीड टू कम इनटू द लेक्चर, सेट आराम से एट होम, बोल दो कि सर को लूज मोशंस हो गया, लेक्चर नहीं है, मेरे पे डाल दो ना बिल,
सबको लूज मोशन हो गया है, अंदर ही बैठे हुए करके आए नहीं, मीटिंग शुरू ही नहीं किया, बोल दो। But I'm not telling you, my dear, I'm telling to others. Others, I'm telling, not to you. You had a genuine issue. Genuine issue, I have no problem, my dear. Don't take it to your heart, okay? मैं ये इस किनके लिए बोल रहा हूँ ना, जो स्टूडेंट्स लास्ट जो 10 मिनट होता है ना, no, my dear. I don't know how to speak. I don't know how to speak Bengali at all. I don't know how to speak Bengali at all. I don't know how to speak Bengali, my dear. I said for all this, not for you, my dear. Because I could see the strength was earlier, it was 25 and now it's 22. For you, it's a genuine, you asked my permission, my dear. Okay? Upendra, are you fine? Are you there, Upendra? Okay, not to you. Don't take it to your heart. Okay, students, abhi answer sunna. Okay? ये तुम्हारा concept of unit vector. Is that clear? Now we move further at students. यही unit vector के अलग-अलग, suppose मैं अगर example दूं, ध्यान से सुनना. तो अभी तुम बताते रहना, मैं तुम्हें पहले लिख लेता हूँ, फिर तुम बताते रहना. चलो. What does this mean? पहला वाला. Can anybody give me all three answers? Yes. सिर्फ इसको बोलना है स्टेटमेंट में, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं to understand your unit vectors properly. बताओ जल्दी फास्ट. Any of you all? Sir, an object with velocity of 2 meters per second is moving vertically downwards. My dear, okay, minus k क्या, fine, vertically down the turn. So you define your motion ना. k का मतलब क्या है? Z axis. So you say like vertical downward, negative z axis. Say like that, it's going towards negative z Z axis. axis. That's why I told you now, unit vectors are assigned ना, axis की हिसाब से assign किया हुआ है. Okay, so what he said is absolutely correct. Upendra, you only answered. You answered this. Yes. Okay. So now please pay attention. The velocity of a body. The answer is in the students. ये देखो इसको कैसे बताएं? A velocity of a body is 2 meter per second along negative z axis. ये देखो z axis को भी किया minus. यानी velocity of a body is 2 meter per second directed along negative z axis. अभी मुझे ये बताओ students. ये पूरा अगर मैं स्टेटमेंट लिखने जाता तो कितना इंक यूज होता, कितना स्पेस यूज होता पेज का. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस. कितना लंबा स्टेटमेंट होता, उसी लंबे स्टेटमेंट को सर इतने में खत्म कर दिया. ये है फिजिक्स. यानी अभी जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वो सारे ऐसे फॉर्म में आएंगे. तुम्हें समझना है कि ये क्या है, तुम्हें समझना है ये माइनस का मतलब क्या है, तुम्हें समझना है कि 2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, और तुम्हें समझना है कि कैप का मतलब क्या है. जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, तुम प्रॉब्लम को आगे जा ही नहीं सकते, उधर ही अटक के रह गए. इसलिए यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ पर भी हो सकता है. तुम बार बार डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे बताओगे. तुम प्लस साइन माइनस साइन प्लस जे प्लस के माइनस प्लस के माइनस के, हो गया तुम्हारा डायरेक्शन. उसके अलावा होगा तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए, एक्स वाई जेड. बटरफ्लाई आया था तुम्हारे घर के अंदर तो एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर्स आ गया, उसका एक कोऑर्डिनेट बता दिया. अगर कार कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव हो रही है या तुम साइकिलिंग कर रहे हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए वो. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनटू द मीटिंग, सी नाउ अगेन Yes, sir. 21 students. See now the 21 students. The rest of them, this is the problem. Okay, now the answer is अभी can anybody tell me about this? सेकंड वाले के लिए क्या है? An object with acceleration of minus 9.8 meter per second. मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स.
due to west, Directed along directed along the west direction. माइनस जे है ना, माइनस जे यानी कौन से एक्सिस पे है? एक्सिस के हिसाब से भी बोलो। Y axis. साउथ को भी, पूर्वी साउथ को भी तुम्हें नेगेटिव बोल सकता हो ना। Yes, sir. नेगेटिव तो यानी ये यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यानी तुम ये बोलो ना -y, यानी सी तुम्हें क्या बोलना है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स अलोंग नेगेटिव एक्सिस, माइनस j नेगेटिव एक्सिस। ये p का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज p स्टैंड्स फॉर? Pressure. मोमेंट। ए Momentum. एक ऐसा एक इसमें से घुस के एक ऐसा पंच लेना चाहिए आप करके। हाँ पूर्वी एक पंच तुम, ये कहाँ से होगा? ये क्या प्रेशर? थोड़ी प्रेशर इज इन पास्कल्स, न्यूटन में मीटर स्क्वायर। ये मोमेंटम है, क्या है? Momentum. ओके, तो अभी बोलो इसके बारे में क्या बोलोगे? Object with a momentum of 5 kg meter per second on डायरेक्टेड Um, अलोंग, directed on y axis. डायरेक्टेड अलोंग Y axis. आई कैप किसके लिए होगा? Sir, that's I. ऑफ कोर्स आई फॉर, ये क्या दिख रहा है? ये है ना। For a second, I thought it's J. हाँ वेरी गुड, जे ऐसे लिखते हैं, स्मार्ट है। आई ऐसे लिखते हैं। उल्लू मत बना, मैं सुबह से वही नहीं मिला, अलीबाग से नहीं आया हूँ। ओके, उल्लू बना, ये आई है। ओके, along which axis? X axis. Purva is also very smart, huh? Purvi is also very smart करके, है ना? गल निकल गया, सर को पकड़ लो। Okay, so it's along which axis? Minus x axis. Okay? Okay, sir. Are these examples clear with everybody? सबको example clear हुआ है अभी? Yes, sir. Okay, can I erase Yes. this or you want to copy it down? Done, sir. Okay. Should I erase? Panchul, are you getting it, Panchul? समझ में आ रहा है Panchul? Yes, sir. Okay, fine. तो क्या erase करो Panchul में? ये लिख रहा है? हाँ sir. Okay. Okay, now we go for vector operations, okay? Which I told you a part of it also. So when I speak about vector operations, यानी how do we operate vectors? ध्यान से सुनो students. ये मैंने बताया भी था पहले, लेकिन वापस मैं एक शॉर्ट में वापस बता रहा हूँ करके. Addition of vectors. Subtraction of vectors. Multiplication of vectors. All three are possible. All three are possible. Addition, yes. Subtraction, yes. Multiplication, yes. Division of vectors. क्या स्टूडेंट ये पॉसिबल होगा? क्या डिवीजन पॉसिबल होता है? नॉट एट ऑल, कभी नहीं, नॉट पॉसिबल। यानी जब भी हम वेक्टर्स को ऑपरेट करते हैं तो हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम डिवीजन नहीं कर सकते। अभी हम ऐड अगर करते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ध्यान में रखना,
students, addition and subtraction should be of same two vectors. ये देखो दो वेक्टर्स ए और बी दिया, ऊपर एडिशन साइन किया है, ए और बी लिया, नीचे नेगेटिव। यानी फिजिक्स के अंदर मैं देखूं तो एडिशन एंड सबट्रैक्शन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। यानी अगर ये फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स ही होना चाहिए। सिंपल। क्या फोर्स के साथ में तुम टाइम को ऐड करोगे? बताओ स्टूडेंट्स। No. No, sir. फोर्स के साथ में तुम एक्सेलरेशन को ऐड करोगे? चलो ऐड करो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी ऐड 5 न्यूटन प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आएगा? No. दोनों वेक्टर है। अगर मैंने बोला स्टूडेंट्स 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड में से -5 न्यूटन सबट्रैक्ट करो, तो एक मोमेंटम हुआ और एक फोर्स हुआ? नहीं। But physical quantity अलग हो गए। Pardon? Physical quantity are changed. Yes, both are different physical quantities। यानी ये ध्यान रखना, जब भी एडिशन और सबट्रैक्शन हम फिजिक्स में करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ये तुम अभी देख रहे हो ना, लेकिन ये तुम पढ़ चुके हो 9th में ही। सर क्या कुछ भी बोल रहे हो? जो भी आप बता रहे हो बोले कि पढ़ चुके, तो अगर हम पढ़ चुके होते तो हम 11th में जाते ही नहीं ना। हम घर पे बैठे बैठे आराम से 11th पास कर सकते। हम इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाते ही नहीं, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स ये तुम पढ़ चुके हो। अब बताओ एक एग्जांपल बताओ स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ, कैन एनीबॉडी गिव मी द आंसर? सुनना, कैन एनी, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ओके, ये एडिशन और सबट्रैक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों का। स्टूडेंट्स, कैन एनीबॉडी गिव मी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? चलो, equation of motion of a body along a straight line with uniform acceleration. Come on, fast. बताओ। Now see, one more student went away. There were 21, now it's 20. This is the problem. Parents are not telling anything to the kids. This is the problem with the students. हाँ बोलो, एनीवन। और फिर यही स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे करके कि हमारा नेटवर्क इशू था, फलाना था, ढिकना था, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये इश्यूज वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो इश्यूज फिर क्रिएट करें। अगर टेक्निकल इशू है तो मुझे एक चैट करके या अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और फिर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। My question is students, can you give me the equation of motion for a straight line with uniform acceleration? सब लोग ने पढ़ा S1 any तो तुम बोलोगे सर V is equal to U plus AT, S is equal to half U plus VD into तो बोले ना S is equal to UT plus half AT square, V square is equal to U square plus 2AS। हाँ, तो V square is equal to U square plus 2AS। तो मुझे बताओ, ये देखो सब में एडिशन आ रहा है, एडिशन। अगर सपोज मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, चलो तो मुझे बताओ एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो तुम बोलोगे सर ये तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन तो अलग अलग है। लेकिन स्टूडेंट्स जब तुम एडिशन करते हो तो ये और ये दोनों का देखो यूनिट, देखो ये किस में होगा? मीटर पर सेकंड में होगा वेलोसिटी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ कि ना? yes sir। सर वो एक्सेलरेशन का डिनोमिनेटर वाला सेकंड और वो टाइम का सेकंड उड़ जाएगा। वेरी गुड, कैंसिल होके तुम्हें मीटर पर सेकंड नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? yes sir। तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? आया तुम्हारा एक्सप्लेनेशन? यानी जब भी तुमने दोनों को ऐड किया, भले तुम्हारे दोनों क्वांटिटीज अलग है, लेकिन उनके जो यूनिट्स होंगे A and B आर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। दैट मींस A and B के जो यूनिट्स होंगे, उनका जो तुम आंसर निकालोगे, दे विल बी एग्जैक्टली मैचिंग अप विद द लेफ्ट हैंड साइड। Sir, यस sir, if a body moving with uniform retardation, so that's why then will be the A will be the negative, no? यस। और अगर तू वर्ड रिटार्डेशन यूज करेगा तो ए को पॉजिटिव में लिखते हैं, लेकिन तो एक्सेलरेशन बोलेगा माइनस में, तो माइनस ए जा सकता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, यानी ये दोनों किसको ऐड किया तुमने? सर वेलोसिटी हो गया, ये भी वेलोसिटी हो गया, ये भी वेलोसिटी हो गया, ये भी वेलोसिटी हो गया। कैन आई से एंटायर इक्वेशन इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी? समझ में आ रहा है? और ये फिजिक्स का रूल है, कोई भी इक्वेशन पे लिखोगे ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड टाइम है तो पूरा राइट हैंड साइड टाइम आएगा।
लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है तो पूरा राइट हैंड साइड डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे फोर्स है तो पूरा फोर्स बन जाता है, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है ना। अभी देखो यहाँ पे प्लस साइन है, अभी ये देखो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, किसमें है, मीटर में। तो तुम इसके यूनिट देखो, ये भी मीटर में मिलेगा। ये देखो स्पीड मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, क्या आंसर आया, मीटर। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम सेकेंड स्क्वायर, आया मीटर, है ना। आर दे ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज? यस सर, दोनों तरफ एक ही है। यानी जब भी तुम ऐड करते हो सब, अभी देखो ये दोनों को सेपरेट करूंगा, इसका आंसर इससे मैच होगा। ये देखो ये क्या है, वी स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर। हाँ सर, इसका भी ये भी है मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। अरे सर ये भी तो मीटर स्क्वायर हो गया। यानी यूनिट्स ऑन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी द सेम, सो आई कैन कंसीडर दे आर ऑफ सेम आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज। So can addition and subtraction of vectors be possible, students? Agreed. Yes, sir. And they can be of same Yes, physical sir. quantities. Agreed. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. No, doesn't matter, Mariam. I just said it that you can add or subtract two physical quantities and they should be of same one. Means if you use the equation b is equal to u plus et, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी है तो ये राइट हैंड साइड दोनों टर्म भी हमें वेलोसिटी का ही यूनिट देंगे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है जिसका यूनिट मीटर है, तो राइट हैंड साइड के भी जो तुम लोग हैं तो इसका आंसर भी मीटर आएगा, इसका आंसर भी मीटर ही आएगा। अगर ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ही मिलेगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी पॉसिबल ओनली फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। डिविजन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन कैन बी पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, तेरे दो अलग वे हैं which we are going to work later on. Multiplication of two vectors and it can be done, so it can be in terms of this, जिसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। या मल्टीप्लिकेशन कैन बी पॉसिबल इन दिस वे आल्सो, जिसको मैं नाम दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, which is a vector product of two vectors. यानी देखो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो पॉसिबल, लेकिन दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स, एक है डॉट और एक है क्रॉस। और ये भी बता दूं, ये भी तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा। सर कहाँ पे, कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी अपने मूड में, कुछ भी बिंदास बिंदास। हमारे बिल फाड़ रहे हो ना, बिंदास, है ना। सारे स्टूडेंट्स हंसते होंगे, वाले ये क्या टीचर है ना। पेरेंट्स भी सोचते होंगे करके ये कैसा टीचर है ना। अभी देखो एग्जाम्पल दूं, सबने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ध्यान से देखना, इसी का एग्जाम्पल। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या ये वर्क, ये क्या है, Force. ये क्या Displacement. है, Displacement. डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है वेक्टर, ये क्या है वेक्टर, और ये स्केलर। तो कहने से ये दोनों के बीच में डॉट, और इसको नाम क्या दिया मैंने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे स्केलर आ रहा है। और एक पढ़ा है इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। Yes, sir. पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जिसको हम बोलेंगे टॉर्क। Yes. इसको हम बोलेंगे मोमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Into force. यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो सब 10th में पढ़ा है। इनटू फोर्स, यानी ये दोनों वेक्टर है और हमारा आंसर भी वेक्टर ही आ रहा है। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें वेक्टर भी मिल सकता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें स्केलर भी मिल। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये तुम्हारा है वेक्टर ऑपरेशन। सो व्हेन आई स्पीक अबाउट वेक्टर ऑपरेशन स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के अंदर यू कैन ऐड वेक्टर्स, यू कैन सबट्रैक्ट वेक्टर्स, यू कैन मल्टीप्लाई वेक्टर्स, बट यू कैन नॉट डिवाइड टू वेक्टर्स।
Division of two vectors is not possible at all. But multiplication of two vectors, yes, it is possible. Addition, subtraction, yes, it is possible. But whenever we go for addition, subtraction, the units of the right hand side physical quantities should exactly be matching up with the units of the left hand side physical quantities. When you go for multiplication of two vectors, it can be either a product called dot product, or either it can be a cross product. Work is equal to force into displacement. Moment of force is equal to momentum into the distance we consider. The perpendicular distance between forces. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. You want to copy it or shall I erase this? I am copying it or shall I erase? Yeah. Sir, done. Sir, done, sir. Yes, sir. Now from next time onwards, students, next lecture onwards, don't miss out. अभी इसके बाद वाले lectures बहुत ही important. You getting it? अभी ये तुम्हारा basics वगैरह सब clear हुआ है. Vectors के अलावा how to understand vectors, unit vectors, direction वगैरह सब कुछ बता दिया मैंने. कैसे दिखाओगे, क्या करोगे? Next lectures के अंदर will be going further and with a portion. और वहाँ पे तुम्हारा clear concept. See to that in the next lecture, students will wind up right now. Next lecture, see to that I want you to revise. जो कुछ पता है उसको अच्छी तरह से revise. Is that Yes, clear, sir. student? Yes, sir. Okay, Yes. we'll wind up. Yes. Chalo, bye. Take care. Thank you, sir. sir. Bye, Most sir. welcome. Thank you, sir. Bye.